Welcome students to our new chapter, lesson 4, the freedom struggle of 1857. Okay, now in this chapter, we will learn about the freedom struggle that took place in 1857 onwards. So now, in 1857, a great struggle took place in India which completely shook the British government. This struggle did not arise all of a sudden. Earlier, as well as many struggles took place in India against the British. The scope of the struggle of 1857 and its background was taken into consideration by V.D. Savarkar in his book The Indian War of Independence in 1857. Later, many revolutionaries got inspiration from it to fight against the British. जो वीडी सावरकर थे, उन्होंने एक बुक लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. उसके आधार पे उन्होंने किस आधार पे जो एक फाइट जो ब्रिटिशों के खिलाफ जो लड़ने लगी थी उसके बेसिस पे उन्होंने ये बुक लिखा. नाउ स्ट्रगल बिफोर 1857. अभी 1857 के पहले क्या स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं. नाउ रिमेम्बर, ये जो भी डू यू नो है ये सारे कैंसिल किए हैं अभी कोरोना के रहते जो रिड्यूस पोर्शन में है. ओके, सो ये डू यू नो वाले जो भी पिंक बॉक्सेस कलरफुल बॉक्सेस है ये सारे निकाल दिए गए. ओके, तो इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव या कोई आने वाला नहीं है. नाउ at every place where the British rule was established in India, the local people had to bear the ill effects of British government. जहाँ पे भी उन्होंने ब्रिटिशरों ने अपना रूल स्थापित किया था वहाँ पे हर जगह पे लोगों को उनके अत्याचार का उन लोगों को यानी सहना पड़ रहा था. The Indians started feeling that they are exploited in every strata due to the company's rule. This resulted in increase of discontent against their rules. यानी ये जो उनको शोषण एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेड का मतलब होता है शोषण, उनको ये समझ में आ रहा था कि हर स्ट्राटा हर यानी दर्जे पे हर उनके लेवल पे उन लोगों को इस कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भी उन्होंने शुरू की थी और ब्रिटिशरों ने जो कंपनी के रूल्स बनाए थे उनके नीचे उनके अंडर उनको शोषण बर्दाश्त करना पड़ रहा था. Farmers and common people became bankrupt due to the company rule. In 1770 there was major famine in Bengal province. Famine का मतलब क्या होता है? अकाल. Okay, but the British rulers were indifferent and insensitive towards Indian people. From 1763 to 1857, the peasants of Bengal participated in the rebellion led by Sannyasi Fakir. Similar revolts took place in Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and South India. Umaji Naik जो थे also gave a strong fight. He organized the Ramoshis and the local youth to revolt against the Britisher. उन्होंने ये एक लीडरशिप ले ली जहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ रामोशीज को जो वहाँ के लोकल जो एक लैंग्वेज थी जो एक लोकल कल्चर थी उनको लेकर उन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ रिवॉल्ट यानी बगावत की. They drew a declaration and appealed to fight against the British and overthrow the government. They inspired people in Pune, Satara, Ahmednagar, Solapur, Nasik, Bhor, etc. In 1832, Umaji Naik was arrested and hanged to death in Pune. The Indian tribes and forest communities also challenged the British rule. Their livelihood was dependent on forest sources. The British laws put restriction on them. अब ये जो tribes थे, tribal community थे रामोशीज करके, तो उनकी जो कहते गुजर बसर किस चीज पे होता था कि फॉरेन का फॉरेस्ट का जो भी लाइवलीहुड होता था यानी फॉरेस्ट के ऊपर जो भी चीजें डिपेंड होती थी उनके बेसिस के ऊपर. तो इस वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशरों ने उसके खिलाफ भी लॉज जारी किया, रेस्ट्रिक्शंस कि वो ऐसे नहीं कर सकते थे, जिन वजह से उनका क्या है वो जो लाइवलीहुड है वो बंद होने लगा. Consequently, Bihar, Kollam area of Chota Nagpur, Gonds of Orissa, Santals of Bihar fought against the British. अब ये जो भी ट्राइबल थे वहाँ के जो भी फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे, आदिवासी बोलो या उसको ट्राइबल्स बोलो, वो जो भी इन जगहों से जैसे बिहार से उड़ीसा से इन सब पे वो उसका जो है वो असर दिखने लगा ये ब्रिटिशरों के अत्याचारों का. The Gadkaris from Kolhapur and Pond Sawant from Konkan also challenged the British. Before 1857,
Some zamindars and royal class from different territories rebelled against the British. ये थोड़े बहुत जो थे रॉयल क्लास के जमींदार भी थे, क्योंकि ब्रिटिशरों ने धीरे धीरे उनके भी सारी जो पावर्स थी वो छीनने लगे, तो इस वजह से उन्होंने भी बगावत शुरू कर ली. In the army of East India Company, there were many Indian sepoys. They were ill treated by the company. अब जब हम देखते हैं कि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि ब्रिटिशरों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की थी तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे लोकल लोगों को सिपाही में उन्होंने उसमें ऐड किया था, उनके साथ भी अत्याचार करने लगे. Their salary and allowances were very less compared to the British soldiers. In 1806 at Vellore and in 1824 at Barakpur, the revolt took up a fierce form. All these rebellions took place in their respective territories. They were locals in nature and single-handed. अब क्या हो गया, वहां के धीरे धीरे उन सब में बगावत होने लगी 1806 और वेलोर में और 1824 बरकपुर में. और क्या होने लगा, उनको धीरे धीरे उन, लेकिन वो क्या होने लगे, वो लोकल थे, यानी वो छोटे कस्बों में रहते थे, तो वहां लोकल उनकी इतनी पहुंच नहीं थी एंड वो अकेले ही पड़ जाते थे. सिंगल हैंडेड का मतलब है उनका कोई सपोर्ट नहीं था ज्यादा. द ब्रिटिश पॉसिबली ब्रोक डाउन द रिवोल्ट्स. तो इस वजह से ब्रिटिशरों को आसान हुआ कि उनको तोड़ने के लिए. पब्लिक अनहैप्पीनेस वाज सप्रेस्ड बट इट डिड नॉट वैनिश. वो दबाने में वो कामयाब रहे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो पूरी तरह वो उसको नहीं खत्म कर पाए. This anger burst out in the freedom struggle of 1857. ये जो है धीरे धीरे उनके अंदर जो ये एक ज्वाला की तरह एक वो हो रहा था, वो धीरे धीरे 1857 में बढ़ने लगा और एक फ्रीडम स्ट्रगल का रूप ले लिया. At various places, the rebellion took place against the British. The discontent in the minds of diverse classes blowed out in the form of this struggle, and its outbreak was in the form of an armed rebellion. Okay? अब ये जो हुआ वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक धीरे धीरे एक बड़े, यानी आर्म्ड रेबेलियन का मतलब है हथियारों के जरिए लड़ने वाला एक रिबेलियन. ये सिर्फ ना कि सिर्फ बोलकर वो दिखाते थे, लेकिन अभी हथियारों का भी इस्तेमाल करने लगे. ओके. कॉजेस फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857. अब इसके क्या कारण थे, क्या कॉजेस थे, वो बताएंगे. ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड देयर वर मेनी किंगडम्स इन इंडिया. बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे किंगडम्स थे, बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे. तो whatever changes took place at the center never affected the village system. इस वजह से क्या हुआ, छोटे छोटे जगहों के राजा महाराजा थे, जैसे तभी स्टेट्स तो नहीं थे, तो इस वजह से वहां पे क्या होता था, वो कभी कभी सेंटर पे, यानी पूरे इंडिया में क्या चेंजेस होते थे, वो उनपे इतनी आसानी से विलेज में नहीं उसका असर करता था. The village system continue as it is, but the British changed the prevalent system and tried to set up a new system. Looking at the changing nature of village system created a feeling of instability and insecurity in the minds of people. यानी जब तक कि वो सेंटर का कोई उनके ऊपर असर नहीं होता था, तब तक जो विलेजेस पे थे उनको कोई परेशानी नहीं होती थी. लेकिन जब ब्रिटिशरों ने इसमें जब चेंजेस लाए, तो क्या हो गया, उन पे असर दिखने लगा और धीरे धीरे उनमें बगावत शुरू हो गई. इकोनॉमिक कॉजेज. इकोनॉमिक यानी आर्थिक क्या चीजें थी जो इसकी वजह बन गई इस स्ट्रगल की. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम. टैक्सेस वर फोर्सिबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स. एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एग्रीकल्चरल सिस्टम कोलैप्स्ड. To sell the British goods in India and enjoy profit was a policy of the British. They imposed heavy taxes on the local industries. The handicraft and textile industries of India were ruined. Many Indian artisans became unemployed. They had growing discontent in their minds against the British. अब ब्रिटिशरों ने क्या किया, आर्थिक स्थिति से भी लोगों को तोड़ने की कोशिश की. तो उन्होंने क्या किया, जो भी हमारे हैंडक्राफ्टेड यानी लोकली जो भी प्रोड्यूस चीजें थी, उनपे ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कर लगाना शुरू किया. उनपे बहुत सारा उनको बंद करने की कोशिश की. तो इस वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिशरों के सामान में क्या हुआ, इजाफा हो गया. लोग उनका सामान खरीदे, उन्होंने ये जोर दे दिया उस पे, और जो लोकल है उनपे उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफें शुरू कर दी. इस वजह से लोगों के बीच में वो भी मनमुटाव शुरू हो गया, आर्थिक रीति से टूटने लगे वो हैवी टैक्सेस के वजह से. सोशल कॉजेस. सोशल कॉजेस क्या थे, द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वर इंटरफियरिंग इन द कल्चरल ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया. ओके, वो क्या करने लगे, उनके सती प्रोहिबिशन, विडो रिमैरिज एक्ट वर करेक्टेड फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, बट द इंडियंस थॉट दैट इट इज एन इंटरफेरेंस इन देयर लाइफस्टाइल एंड हेंस दे वर डिससैटिस्फाइड.
अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशरों ने बहुत सारी इनके जो रीजनल कल्चरल सोशल जो भी है वे ऑफ सेलिब्रेटिंग देयर फंक्शंस फेस्टिवल्स उसमें भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की, और कुछ अच्छी पॉइंट्स भी थे जैसे विडो रीमैरिज और सती प्रोहिबिशन। लेकिन लोगों को क्या हुआ कि ये हमारे कल्चर में दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो ये उनका मनमुटाव का एक कारण बन गया। पॉलिटिकल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे? आफ्टर 1757 the British took charge of many Indian states. Later, Lord Dalhousie annexed many princely states on various causes. The Nawab of Ayodhya was dethroned on the grounds of maladministration, whereas the princely states of Satara, Nagpur, and Jhansi were annexed through the doctrine of lapse. Due to the policies of Dalhousie, the Indians did not consider the Britisher as trustworthy. अब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को भी अपने अंडर लेने लगे, वो उनको डिफीट करने लगे, एक दूसरे के बीच में भड़काने लगे, और फिर उनके जो भी था वो उनको जैसे माल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कोई ना कोई इल्जामबाजी करके उनको उन्होंने निकाला और खुद उस पे राज करने लगे। तो ये हो गया पॉलिटिकल ऑल्सो कॉज। ना डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स, तो हमने कौन कौन से कॉजेस देखे जो स्ट्रगल ऑफ 1857 के लिए जिम्मेदार थे। एक थी आर्थिक कॉजेस, दैट इज इकोनॉमिक कॉजेस, सोशल कॉजेस यानी सामाजिक जो उनके वो कल्चर में इंटरफियरेंस थी, दखल अंदाजी थी, और फिर थी पॉलिटिकल। ओके, तो ये वो उसमें होने लगी, तो ये तीन बेसिक मेन वजह थी। एंड डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स, अब इंडियन सोल्जर्स वर गिवन लो स्टेटस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर। अब उसी दर्जे के जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे उनको वो ज्यादा तवज्जो देते थे, उनको ज्यादा पैसे, उनको ज्यादा फैसिलिटीज देते थे, लेकिन उसी लेवल के या उसी ओहदे के जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ वो बुरा व्यवहार करते थे। दे कुड नॉट गेन एनी पोस्ट हायर देन सूबेदार, उनको सूबेदार के ऊपर कोई पोस्ट दिया ही नहीं जाता था। ओके, they were paid less compared to the British soldiers. The allowances were also gradually decreased. Due to these reasons, there was growing discontent among the Indian soldiers. Now, immediate cause, इसका बहुत ही immediate यानी बोलते हैं ना कि झट से कौन सा वो ऐसा cause था जो इसके लिए जिम्मेदार था। In 1856 यानी एक साल पहले की बात है, जो ये वॉर ये रिबेल होने से पहले, the British provided long Enfield rifles to the Indian sepoys. The sepoys were required to bite the end of the cartridges. The news spread out that these cartridges were smeared with the fats of cow and pig. Due to this, the religious sentiments of Hindu and Muslim sepoys were hurt and made them unhappy. अब उन्होंने उनको लंबी राइफल्स दी थी सिपॉइज को, और जिसकी जो एंड थी वो उनको क्या करना पड़ता था, चर्बी लगी थी किसकी, गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, जो उनको अपने मुंह से खींचना पड़ता था हर बारी उसको चलाने के लिए। तो इस वजह से जो काऊ जो हिंदू लोगों के लिए एक माँ की तरह होती है या एक जो होली बोल दिया जाता है, तो उनको वो बुरा लगने लगा। मुस्लिम्स के लिए पिग सुअर उनके लिए वो हराम था, तो इसलिए ये दोनों के बीच में वो यानी मनमुटाव होने लगा उन लोगों को। तो ये इमीडिएट कॉज था। Of the outburst, the disciplinary action was taken on those sepoys who refused to use the smeared cartridges and were given severe punishment. अब वो जो सिपॉइज ये करने से मना करने लगे उनके ऊपर बहुत ही उन लोगों ने तेज कोई भी एक्शन लेना शुरू किया ब्रिटिशरों ने। फिर उसमें क्या हुआ, जो मंगल पांडे थे फ्रॉम बरकपुर कंटेनमेंट शॉट एन इंग्लिश ऑफिसर एज ए रिएक्शन टू द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश। अब कोई भी चीज बहुत देरी से कोई अत्याचार करने लगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये जो मंगल पांडे थे उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ। ओके, दिस न्यूज स्प्रेड लाइक अ फायर, अब इनको जो उन्होंने फांसी पे लटका दिया, तो ये एक आग की तरह फैल गई है खबर। The entire regiment of Indian sepoys at Meerut took part in the freedom struggle and marched towards Delhi. Thousands of Indians voluntarily joined them on the way. They handed over the leadership of the freedom struggle to the Mughal Emperor Bahadur Shah and proclaimed him as the Emperor of India. अब इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह को उन्होंने अपना लीडर बना दिया और उनको एम्पेरर इंडिया का बना दिया उन्होंने।
और उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जब ये मंगल पांडे को इन्होंने फांसी की सजा दी, तो मेरठ में कई सारे सिपाहीज हैं, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया और दिल्ली की तरफ वो उन्होंने अपना रुख कर दिया। नाउ स्कोप ऑफ द स्ट्रगल, अब इसका क्या असर होने लगा, उस स्ट्रगल का क्या असर था, क्या इसके मायने थे, वो बता रहे। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सिपाहीज इंक्रीज्ड विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली। अब जो दिल्ली के जो उनके हाथ में आ गई, तो इससे क्या हो गया, सिपाहीज की जो थी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगी। इट ऑल्सो गेव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स। द रिवोल्ट soon spread to North India. The Indian soldiers revolted in cantonments from Bihar to Rajputana. The revolt spread in Lucknow, Allahabad, Kanpur, Banaras, Bareilly and Jhansi. ये धीरे धीरे इन सारी जगहों में फैलने लगा. Later it spread to South India. ये अपने आप में उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगा दिल्ली को जब उन्होंने कैप्चर किया, और धीरे धीरे सारे राजपुताने में, सारे बाकी हिस्सों में इंडिया के फैलने लगे. धीरे धीरे इन द रिवोल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सतारा एंड हिज ऑफिसर्स, Officer Rango Bapuji, Chima Sahib of Kolhapur, Bala Saheb Bhave of Nargund, Bhagoji Naik of Ahmednagar were in the forefront. Royal Queens of Pet Sargana from Nasik district also participated in the struggle. In 1857, under the leadership of Kajjar Singh, the Bhils revolted, whereas Shankar Shah led the revolt in Satpura region. 400 female Bhils participated in the revolt at Khandesh. अब धीरे धीरे ये इन सारी जगहों में फैलने लगा. Okay, leadership of the struggle during the 18th CA, after the weakening of Mughal empire, invaders like Nadir Shah Abdali attacked India. The Marathas understood that Mughal emperor cannot react to these foreign inventions and took up the responsibility of safeguarding India. The Marathas fought against Abdali at Panipat for the same reason. अब जो ये धीरे धीरे उनकी लीडरशिप क्या हुआ, 18th सेंचुरी जो थी उसमें मुगल एम्पायर धीरे धीरे कम होने लगी, उनकी जो धौस थी, उनकी जो ताकत थी कम होने लगी. किस वजह से, क्योंकि इन्वेडर्स आने लगे, नादिर शाह जैसे, अब्दली, उन्होंने क्या किया, नादिर शाह अब्दली इन्होंने अटैक किया इंडिया पे. एंड जो मराठास थे मुगल एम्पायर के खिलाफ वो नहीं लड़ पाए ड्यू टू दी फॉरेन इन्वेंशंस. एंड इस वजह से क्या हुआ, मराठास जो अब्दली के अगेंस्ट वो लड़ने लगे, उनको क्या हुआ, in the freedom struggle of 1857 the descent of Mughals, Bahadur Shah was incapable of fighting against the British. अब ये भी वीक होने लगे तो सारे बट गए, इस वजह से वो ब्रिटिशरों के खिलाफ नहीं लड़ पाए. अंडरस्टैंडिंग the condition, Nana Saheb Peshwa, Rani Lakshmibai of Jhansi and Tatya Tope took up the charge of freedom struggle of 1857. Its effect could be seen on the Hindu-Muslim unity in the struggle. अब तभी हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हो गए और उन्होंने यूनाइटेड किया कि हम लोगों को ब्रिटिशरों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है. मौलवी अहमद अल्लाह, कंवर सिंह, मुगल कमांडर बख्त खान, बेगम हजरत महल led the revolt in various regions. The nature of revolt in Delhi, Kanpur, Lucknow, Jhansi, West Bengal was most fierce. Crushing of the struggle. The Indians wholeheartedly fought against the British, including soldiers, zamindars, kings, commanders, and common people. The Indian sepoys started the freedom struggle before the fixed time. Initially, they succeeded, but the military strength and administration of British rule was vast. The British crushed down the struggle by all means. The British made quick recovery and within next 6 months regained the lost territories. Rani Lakshmibai, Kunwar Singh, Ahmadullah laid their lives. Bahadur Shah was imprisoned at the Rangoon. Nana Sahib and Begum Hazrat Mahal took shelter in Nepal. Tatya Tope fought for the next 10 months against the British, but due to the betrayal, he was caught and hanged to death. In this way, by the end of 1858, the British ruthlessly crushed down the struggle. ये जो struggle धीरे धीरे बहुत सारे जिनके नाम रानी लक्ष्मीबाई थे, कुंवर सिंह थे, अहमद अब्दुल्ला थे, नाना साहब थे, बेगम हजरत महल थी, बहादुर शाह थे, ये धीरे धीरे, और तात्या तोपे भी जो थे, ये धीरे धीरे उन्होंने लड़ा, लेकिन वो ब्रिटिशरों के आगे टिक नहीं सके और इस तरह से धीरे धीरे 1858 यानी 58 में ब्रिटिश जो है उन्होंने ये स्ट्रगल को क्रश किया.
Even though the struggle began with the discontent among the British soldiers, but later the peasants, artisans, common people, tribes came together to fight against the British. तो ये जो स्ट्रगल है कह रहे हैं कि ना कि सिर्फ इंडियन सोल्जर्स से जो शुरुआत तो हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें सारे हिस्सों के सारे वर्ग के लोगों ने भाग लेना किया। पीजेंट्स का मतलब है फार्मर्स, आर्टिशन जो कलाकार थे, कॉमन पीपल जो थे, ट्राइब्स जो थे, सारे इसमें शामिल हो गए। In this rebellion, Hindu Muslims stood up with a great force. The common aim was overthrowing the British from India. अब इसमें साथ इकट्ठे आए हिंदू मुस्लिम और उनका कॉमन जो एक गोल क्या था कि किसी भी तरह हमने ये ब्रिटिशरों को यहाँ से भगाना है. There was an inspiration of gaining independence behind this struggle, and therefore this freedom struggle gained a national form. Causes of failure of the struggle. The struggle of 1857 became unsuccessful due to the following reasons. The struggle was not comprehensive. The struggle did not take place simultaneously all over India. Its intensity was more severe in North India, but Rajputana, Punjab and some parts of Bengal and Northwest India remained aloof. अब ये फेलियर क्या हो गया, क्या क्या वजह थी कि ये फेल हो गया 1857 का, क्यों हो गया, जबकि ये सारे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे आए थे, राजा राजघराने, सारे लीडर्स, महाराजा राजा महाराजा रानियां सब आए, तो क्यों ये स्ट्रगल नहीं हुआ? पहली बात तो वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। क्यों कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था? कि वो एक ही साथ एक जगह पे नहीं शुरू, पूरे इंडिया में नहीं शुरू हुआ, वो एक हिस्सों में बंटने लगे। और उसमें भी क्या हुआ, सब में यूनिटी नहीं था। जैसे उसमें पंजाब शामिल नहीं था, राजपूताना नहीं था, थोड़े हिस्से नॉर्थ इंडिया के नहीं शामिल थे, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया ये शामिल नहीं थे। इस वजह से क्या बोलते ना, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी इकट्ठे यूनिटी अगर होता है तो सारे जीत सकते थे, लेकिन सारे यूनाइटेड नहीं थे, एकता नहीं थी सब में। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, अब एक सेंट्रल लीडरशिप होनी चाहिए। ये क्या अपने अपने तरीके से लीडरशिप लेते थे, ये क्या समझता है वो अपने हिसाब से करेगा, वो क्या समझता है वो अपने हिसाब से, कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था, कॉमन लीडर नहीं था। There was no commonly accepted leader to fight against the British. Due to this, there was no uniformity in the struggle against the British. Most of the feudatory princes remained aloof. यानी feudatory यानी जो आपस में ही लड़ रहे थे, जो आपस में लड़ रहे थे वो प्रिंसेस जो है वो कभी साथ में एक इस पे मुद्दे पे नहीं आ पा रहे थे, सहमति नहीं थी, उनकी आपसे सहमति नहीं थी। Just as the common people suffered due to the British rule, similarly the princes were also suffering, but except for a few others remained faithful to the British. थोड़े बहुत जो थे वो ब्रिटिशरों के लिए अपने स्वार्थ के लिए उनका साथ दे रहे थे। लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, अब इनमें जो थी मिलिट्री टैक्टिक्स की कमी थी, उनके पास सारी वो क्या बोलते हैं हथियार की नॉलेज नहीं थी। So what was that? Indian soldiers were brave but did not use tactics. They captured Delhi but could not retain it. Similarly, the Indian rebels had limited arms supply. The British had economic strength, disciplined army, enough stock of latest arms and experienced army generals. Since transport and communication was in the hands of British, their movements were swift. Due to this, the Indian sepoys could not succeed. Wars were fought not only based on bravery but also through military strategies. Okay. Now, इंटरनेशनल सिचुएशन फेवरेबल फॉर ब्रिटिश, अब इंटरनेशनल सिचुएशन थी वो ब्रिटिशरों के लिए फेवरेबल थी, यानी उनके लिए अच्छा था वो सारा सिचुएशन। द क्राइमियन वॉर विथ रशिया वाज जस्ट ओवर, द ब्रिटिश वन द वॉर, दे हैड ट्रेड रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश वाज वास्ट whereas इंडियन रिबल्स वर आइसोलेटेड, यानी ब्रिटिशरों को क्या थी, पहुंच थी, वो सारे कंट्रीज के साथ उनका व्यवहार चल रहा था, और उनके इस वजह से क्या हुआ, उनकी पहुंच बहुत थी, उनकी नेवल यानी जो दरिया में जो समंदर की जो उनकी जो पहुंच थी वो बहुत ज्यादा थी, जबकि इंडियंस के साथ उनकी उतनी पहुंच नहीं थी क्योंकि उनके दूसरे देशों के साथ कोई व्यवहार नहीं था। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस मींस इन सब का क्या परिणाम हुआ, परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस को बोलते परिणाम ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे खत्म हो गया वो बता रहे हैं। इस वजह से due to the company rule there were growing dissatisfaction among the Indians and the British rule had to face the struggle of 1857।
It forced the British Parliament to end the rule of the company and instead take over the responsibility of the ruling over the people of India through the Government of India Act 1858. The Governor General was now designated as a Viceroy of India. Lord Canning happened to be the last Governor General and the first Viceroy of India. A new post called Secretary of State was created in the British government to look after the affairs of India. अब ये जो लॉर्ड कैनिंग थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे. तो इन पोस्ट की वजह से क्या हुआ, एक नया पोस्ट स्थापित हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी काम थे इंडिया में उसको उसकी देखरेख करते थे. क्वींस प्रोक्लेमेशन. Queen Victoria of England issued a declaration addressing the people of India. All Indians are a progeny. Progeny का मतलब क्या होता है, यानी सारे इंडियन जो है वो हमारे हैं, वो हमारे मलकियत के हैं. Henceforth they will not be discriminated on the basis of race, religion, caste or birthplace. तो उन्होंने क्या किया, तभी जो इंडिया के अंदर जो फूट थी ऑलरेडी कास्ट के बेसिस के ऊपर, तो उस चीज को उन्होंने और उन्होंने क्या किया कि हमारे अंडर आएंगे उनके बीच में हम लोगों ने ये सारी चीजें नहीं करनी है. हमने उनके बीच में भेदभाव नहीं रखना है बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रिलीजन और बर्थ प्लेस. इसका उन्होंने ऐलान कर दिया. गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी गिवन ऑन मेरिट, यानी जो भी गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, जो भी गवर्नमेंट जो परमानेंट जॉब थी जिनको बहुत सारी फैसिलिटीज थी, वो उन्होंने कहा कि जो भी उसके हकदार होंगे सही मायने में उन्हीं को दिया जाएगा. देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स, यानी उनके जो कल्चरल में है या उनकी जो भी यानी जो भी फेस्टिवल्स है या कुछ भी ऐसे उनके पूजा पाठ है उनमें हम कोई भी हमारी इंटरफेरेंस नहीं होगी, ये बताया. It was made clear that the British Crown will honor all treaties and agreements made by the company with the rulers of princely states and no princely state will be annexed henceforth. यानी उन्होंने क्या किया, annex का मतलब होता है खत्म कर देना. तो उन्होंने क्या किया कि आगे से हमने कोई भी राजाओं की जो है वो उन जगहों के जो राजा महाराजा या प्रिंस है कुंवरे, उनको हमने किसी को भी हटाना नहीं है, उनको अपने राज में राज करने दे देना है. कि तो ये सारी उन्होंने जो वो रानी है उन्होंने ये प्रोक्लेमेशन कर दी. Now change in composition of army. The proportion of British soldiers was increased in the army. English officers were placed at strategic locations. Artillery was kept exclusively in the hands of British. लेकिन उन्होंने क्या किया माजी में, उन्होंने क्या किया रियलिटी में क्या किया, उन्होंने वो जो आर्मी की पोजीशन कैसे कर दी कि सारे ब्रिटिश सोल्जर जो है उनको बढ़ा दिया अपने आर्मी में, और उन्होंने क्या किया उनको इंग्लिश ऑफिसरों को बड़े बड़े पोस्ट पे दिया, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस दी, उनके लिए कुछ ऐसे राइफल बंदूक ऐसे दिए, जो भी थे हथियार दिए जो सिर्फ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के थे, जो सिर्फ उनके लिए ही थे. द डिवीजन ऑफ मिलिट्री ऑन बेसिस ऑफ कास्ट कर दिया उन्होंने. Proper care was taken to avoid Indians to unite and rebel against the British. तो उन्होंने क्या किया, इस चीज का उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह इंडियंस के बीच में एकता नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में हमेशा फूट होनी चाहिए ताकि वो हमारे खिलाफ यानी ब्रिटिशरों के खिलाफ कोई बगावत ना कर सके. Change in policy. The British accepted a policy of non-interference in social and religious aspects of Indians. They also started taking care that the Indian society will not be united on social grounds. They saw to it that there will be constant conflicts on the ground of caste, religion, race, territory, etc. अब उन्होंने बड़ी चालाकी से इस चीज को क्या किया कि उनके बीच में जो आपसी मनमुटाव है उसको कम नहीं किया, रादर उनको रहने दिया जैसे है वैसे. उसमें ज्यादा से ज्यादा उन्होंने और भी बढ़ावा किया ताकि लोगों के बीच में कास्ट के बेसिस पे यानी लोगों के भाषा और उनकी जो कल्चर है उसके बेसिस पे हमेशा एक एकता उनकी ना बने उस तरह से, और हमेशा झगड़े होते रहे. They adopted a policy of polluting the minds of Indians by following the divide and rule policy. उन्होंने ये divide and rule की जो पॉलिसी है उस चीज को उन्होंने बढ़ावा दिया. Due to the freedom struggle of 1857, the Indians felt of giving a united fight against the British rule. The freedom struggle of 1857 became an inspiration of Indian freedom movement. अब इन्होंने क्या किया, उस चीज को उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया और इस तरह से क्या हुआ, लेकिन इंडियंस ने क्या सोचा, उन्होंने मिलकर
एक होकर, एकजुट होकर यूनाइटेड फाइट उन्होंने 1857 को देने की ठान ली थी। और इस तरह से 1857 की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो शुरुआत हो गई और आगे के इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को उसका उनको प्रेरित करता गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लेसन 4 जो है इट्स कंप्लीटेड and it is on based on the freedom struggle of 1857. Okay, I'll share with you the notes also simultaneously.